Good morning, class. Today is the Independence Day, and wish you all the Independence Day for you and your groups. I will teach you a relation between electric field and potential energy, equipotential surface, electric potential at a point due to dipole. 4 टॉपिक आज हम आपको पढ़ाएंगे और ध्यान दीजिएगा, वीडियो छोटा ही बनाएंगे, कुछ एप्लीकेशंस बताएंगे और जो एप्लीकेशन आपको फर्दर चाहिए क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, खास करके इसके रिलेशन वाले, तो आप हमको ईमेल कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके या अलग से वीडियो बना के देंगे आपको. ओके, नाउ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल. फर्स्ट टॉपिक, consider there be point charge q at point O having electric field E. A test charge q0 brought from infinity to A, which is at a distance of r. Consider there be point charge q having electric field E. The test charge q0 is brought from infinity to A, which is at a distance of x from O. We consider a small displacement dr from O. It is at a distance of r. Distance of r, which is shown in the diagram. All the information is written here. Q be the point charge having electric field E. A test charge q0 is brought from infinity to A, which is at a distance of x from O. We consider a very small section dr at a distance of r from O. This is given in the, this diagram is written as in this way. In the example you may write this way or draw the diagram in a clear way. Now dw is equal to, we know that dw is equal to f dot dx, and that is equal to f dx cos theta. Here theta is just opposite, this displacement is just opposite to the electric field, so theta is equal to 180. F dx cos 180, that is equal to minus f dx. We know that f is equal to E into q naught, so we can write minus E q naught, that is dr, small displacement dr is taken dr, so this one will be dr, E q naught dr dw. Now dw by q naught is equal to E dot dr, E dr. We know that dw by q naught is equal to dv, so dv is equal to minus E dr. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो दिस होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे इन दिस वे, a टू b लेंगे तो यहाँ भी b a टू b होगा, VBA is equal to minus E dot dr. This is the most important formula between the relation between electric field and potential. This can be also written as dV is equal to minus E dr, or E is equal to minus dV by dr. This is called potential gradient. Displacement rate of change of potential is called potential gradient. Displacement
rate of change of potential is called potential gradient. E is equal to minus dV by dr. E is equal to minus dV by dr. And negative of potential gradient is called इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर. इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम पढ़ रहे थे न्यूटन पर कूलम. तो वोल्ट पर मीटर इज आल्सो द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ if it is represented in different axes, that is Ex is equal to minus del V by del X. अगर इसको हम अलग अलग एक्सिस में कंपोनेंट में तोड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो D के जगह डेल हो जाएगा. पार्शियल डिफरेंशिएशन, दिस इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन. दैट मीन्स इफ वी वुड लाइक टू डिफरेंशिएट इट with respect to X, that means all other variable will become constant except X. If you would like to differentiate it with respect to Y, then all the except Y, all the other will become constant. All the variable will become also constant. And similarly in Z axis, so Ex can be represented as minus del V by del X I. Ey can be represented as minus del V by del Y J. Or Ez is equal to minus del V by del Z K. And that is E is equal to minus del V by del X I minus del V by del Y J minus del V by del Z K. इसका फिर मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं. दिस का होल स्क्वायर यानी E, if it is written as E mod, then minus del V by del X whole square plus del V by del Y whole square plus del V by del Z whole square का root over. And direction cos theta also can be find out. So this is the relation. Now on this relation we can solve some application. First, application number 1. If V is equal to 4AXYZ, find electric field at 1, 1, 1 या 1, 2, 1, 1, 3, 1 कुछ भी कोऑर्डिनेट हो सकता है. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. दैट इज इक्वल टू 4AYZ. x is only variable quantity and all other variable become constant. So Ex is equal to हो गया minus 4AYZI. अब 1, 1 पर है तो दोनों कितना हो जाएगा? This is equal to minus 4AY. X, Y, Z का कोऑर्डिनेट 1, 1 है. Now we differentiate it, partial differentiate it with respect to y. So del y is equal to होगा minus 4AXZ. This is equal to J and that is equal to minus 4AG because X have one coordinate, Z have also one coordinate. 2 रहता तो यहाँ 2 दे देते. Now EY is equal to, now EZ is equal to minus del V by del Z. This is equal to, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 4AXY minus K, that is minus 4AK because X and Y both have one coordinate. So E is equal to होगा minus 4AI minus 4AJ minus 4AK. In this way we can find out the electric field. Find electric field at this point. सेकेंड टाइप क्वेश्चन, अगर V दिया हुआ तब ऐसे बना दिए, प्लस माइनस में भी रह सकता है. एक घर में बनाइएगा V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एट कोऑर्डिनेट 1, 2, 3. बनाइएगा इसको, क्वेश्चन है होमवर्क. एप्लीकेशन नंबर 2.
Here V is given, we have to find out the electric field. Now here E is given, E is equal to 4i plus 2j plus 3k. Find potential VAB from 1 1 to 2 2. A का क्वाड्रेंट 1 1 है, B का क्वाड्रेंट 2 2. तो क्या होगा फॉर्मूला पहले बता दिए, VAB इज इक्वल टू माइनस E डॉट DR. ए पहले है तो ऊपर में ए लिखा गया, बी बाद में तो बी बाद में लिखा गया, नीचे लिखा गया. फिर लिखते हैं माइनस ई, जो फॉर्मूला दे देंगे, जो वैल्यू दिया हुआ 4i प्लस 2j प्लस 3k, और dr के बदले में हम अपने मन से देंगे dxi प्लस dyj प्लस dzk, b से लेके a तक. अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना हो जाएगा, माइनस 4dx होगा i डॉट i प्लस 2dy प्लस 3dz, b से लेके a तक. सबको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं, ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 2y प्लस 3z. b का कोऑर्डिनेट है 2 2 और a का कोऑर्डिनेट है 1 1. अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 1 1 करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 3, फिर माइनस 2 का करेंगे तो 8 प्लस 4 प्लस 1 1 1 2 2 2. 3 ठो कोऑर्डिनेट देना होगा, तो 2 2 2. तो 2 4 2 जा 8, 4 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 6 10 8 18, 4 3 7 और 2 9, माइनस 9 बराबर 9 वोल्ट. इस तरह से 9 पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट मिल जाएगा. तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इस तरह से बनाएंगे, पोटेंशियल निकालने का आएगा. जब पोटेंशियल देगा तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. इसको एक और, इसमें भी एक होमवर्क दे देते हैं हम. एप्लीकेशन नंबर 2 था ये, इसका होमवर्क है. होमवर्क xi माइनस 2yj प्लस 3zk. फाइंड E इज इक्वल टू, फाइंड VAB कोऑर्डिनेट 1 2 3 A का, अब B का कोऑर्डिनेट 4 6, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 1 1 2 1 4, 1 2 3. A to B का निकालिएगा, वो क्वेश्चन है. तीसरे एप्लीकेशन में चलते हैं, उसको नोट कर लीजिए. एप्लीकेशन नंबर 3. अगर ये वेरिएबल दे दे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें तो कांस्टेंट है, सब क्लियर है, XIV करके दे दिए. अगर इस तरह से दे, E इज इक्वल टू 4, E इज इक्वल टू YI प्लस XJ. फाइंड VAB या फाइंड V. पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया हुआ, पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो V इज इक्वल टू होगा E माइनस E डॉट DR, माइनस E, लिमिट नहीं है इसलिए लिमिट नहीं देंगे, YI प्लस XJ देंगे, और डॉट DR की जगह DXI प्लस DYJ, DZ के भी दे सकते हैं लेकिन यहाँ Z है ही नहीं. अब इसको इंटीग्रेट करते, डिफरेंस डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो y dx प्लस x dy. अब इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि अगर dx ले रहे हैं तो y वेरिएबल है, dy ले रहे हैं तो x वेरिएबल है. तो ऐसे क्वेश्चन को IIT में भी पूछा है, ये 2 बार पूछ चुका है IIT में. तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा डिफरेंशिएशन खोजना होगा इसके बदले में, जो इसका ऐसा टर्म खोजना होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये है. ठीक उल्टा सोचें. तो सोचने का तरीका क्या है कि अगर हम जब dx लेंगे तो dx को हटाना चाहिए, और सब टर्म खोजने के लिए इसको हटाएंगे,
तो ये जब हटेगा तो इसके साथ x और कांस्टेंट भी हटेगा, अरे क्या बच गया, सिर्फ y बच गया। और dy जब हटाएंगे तो y और कांस्टेंट हटेगा, तो y और कांस्टेंट नहीं है तो x बचा, तो x dxy बचा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x कांस्टेंट रखते हैं या y कांस्टेंट रखते हैं तो x का डिफरेंस dx हो जाएगा, और प्लस x कांस्टेंट रखते हैं तो y का डिफरेंशिएशन dy हो जाएगा। ये टर्म आ गया, मतलब इसके बदले में ये लिखा जा सकता है या इसके बदले में ये लिखा जा सकता है, तो माइनस इसको लिख सकते हैं dxy। तो इंटीग्रेशन dx बराबर क्या होता है, 1 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, और दूसरा जितना भी पावर उसे डिवाइड होगा। ठीक उसी तरह से इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, माइनस एक्स वाई और प्लस एक कांस्टेंट दिया जाता है प्लस कांस्टेंट, इस तरह से आएगा। आईटी में पूछा था ये, ध्यान दीजिएगा। 1 इंटू एक्स वाई हो गया, एक्स वाई बचा, और एक कांस्टेंट क्योंकि लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट देना पड़ता है। एक इसके भी लिए भी एक होमवर्क हम देते हैं आपको कि अगर होमवर्क है कि E इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बाई आई प्लस एक्स क्यू जे, फाइंड भी बताइए। एप्लीकेशन नंबर 2 में सब आप कमेंट में लिखिएगा या भेज सकते हैं, भी ईमेल दिया ही हुआ है mohansir.classes@gmail.com पर भेज भी सकते हैं आप सॉल्यूशन। अगर प्रॉब्लम होता तो पूछ भी सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर 3, इस एप्लीकेशन है, मानते हैं कि कोई डायग्राम है, डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका साइड 10 मीटर है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E इज इक्वल टू 4I, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड VAB, फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VC और VC माइनस VB, VA माइनस VB, VC माइनस VA, VC माइनस VB, फाइंड। ये करना है, तो इसमें कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना है, पहले इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल को फॉलो करते हैं। रूल क्या है पहले उसको देखते हैं। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये फैक्ट्स आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा। एक बार आईटी में जो क्वेश्चन पूछा है हम उसको पहले देखेंगे। पहला पॉइंट लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फील्ड लाइंस always move from high potential to लो पोटेंशियल। अब इस कॉन्सेप्ट पर एक बार आईटी में पूछा है 2011 या 12 पे या उससे पहले पूछा, याद नहीं है, पूछा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स एक्सिस में है और हमारे पास 4 पॉइंट है। एक का क्वाड्रेंट है 0A, दूसरे क्वाड्रेंट है -A0, तीसरे क्वाड्रेंट है 0 -A और चौथे क्वाड्रेंट है A0। अब पूछा विच हैव मोर पोटेंशियल, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C एंड पॉइंट D। तो क्या बोलेंगे, विच हैव मोर पोटेंशियल? ऑब्वियस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम दिस टू दिस वे, दैट मीन्स फर्स्ट अगर हम इस तरह से मूव करते तो पहले सबसे पहले B पॉइंट पर टच करता है, दैट मीन्स B हैव मैक्सिमम पोटेंशियल। उसके बाद A और C को करता है, दैट मीन्स A एंड C हैव इक्वल पोटेंशियल, एंड देन D, दैट मीन्स D हैज मिनिमम पोटेंशियल। तो जिस तरह से पहले जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में मूव कीजिए, जिस पॉइंट को पहले टच करेगा उसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा और कम होगा, जो बाद में आएगा उसका कम होगा। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पर, इस लाइन के कॉन्सेप्ट पर पूछा गया था क्वेश्चन था ये। दूसरा होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द लाइन and the perpendicular distance between 2 points
which is parallel to the electric field, to electric field, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल है। चलिए यही कॉन्सेप्ट है, इसी कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं। इस कॉन्सेप्ट में अब इसमें हम क्लियर करते हैं पहले कि इस ए बी सी में किसका पोटेंशियल सबसे ज्यादा। ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो बी का सबसे ज्यादा पोटेंशियल। ये नहीं सोचना ये ऊंचा है तो ए का ज्यादा पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन बी हैज मैक्सिमम पोटेंशियल, देन ए देन सी। अब हमसे पूछा जा रहा है कि वी ए माइनस फाइंड वी ए माइनस वी बी। अब जो लिखेंगे इसका रीजन माइनस लिख देंगे। क्यों लिखेंगे माइनस? लिखेंगे कि वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, और वी बी ग्रेटर देन वी ए तो वी ए माइनस वी बी तो निगेटिव होगा ही। उसके बाद बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, कितना लिखा हुआ 4 ऑन द लाइन विच इज पैरेलल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्वेटोरियल एक्सियल आइसोसेलेस कौन है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मींस दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो हमको ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं लेना है ए और बी के बीच का, ये डिस्टेंस पर लेना है जो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब 10 cos 60 होगा ये। तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 10 cos 60। cos 60 कितना होता है? -4 इंटू 10 इंटू 2 से 2 कर गया, माइनस कर गया, -20 वोल्ट, यानी वी ए माइनस वी बी बराबर -20 वोल्ट। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी सी एंड वी सी माइनस वी बी। दिस इज द होमवर्क फॉर यू। नाउ एप्लीकेशन नंबर 5 नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, और उसके बाद हम एप्लीकेशन नंबर 5 में चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर 5, मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही एक्सिस में, अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तब क्या करेंगे? इस तरह से है, मेकिंग 37 डिग्री। एक पॉइंट भी उस लाइन पर नहीं है, 0,4 सॉरी -2,0 है ए पॉइंट, और बी पॉइंट कोऑर्डिनेट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0,4। फाइंड वी ए बी। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 100 न्यूटन पर कूलम या 100 वोल्ट पर मीटर। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे हमको, क्योंकि वी ए बी का फॉर्मूला हम जानते हैं -E.dr जानते हैं, और ए है तो ए का लिमिट ले लेंगे ऊपर -20, और बी है तो 0,4 लेंगे नीचे में। अब हम ई को निकालना जरूरी है, तो ई का फाइल वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 sin 37 इधर होगा, और इधर हो जाएगा 100 cos 37। 100 sin 37 होता है 3/5, 60 हो गया, और 100 cos 37 होता है 4/5, 80 हो गया। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू हो गया माइनस तो है फॉर्मूला में 80i और प्लस 60j। एक्स एक्सिस वाले में i दे दिया, वाई एक्सिस वाले में j दे दिया। ये वाई एक्सिस का वैल्यू निकला, ये एक्स एक्सिस का वैल्यू निकला। डॉट dr के बदले में लिख सकते हैं dxi और प्लस d/j। अभी पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, 0,4 इसका लिमिट हो गया, -20। पहले वाला जैसे मैं कन्वर्ट कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर 6 में चलते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एप्लीकेशन नंबर 6 में चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता, पोटेंशियल दिया रहेगा, तब क्या करेंगे? एप्लीकेशन नंबर 6, इस तरह का क्वेश्चन हो, ये 20 है या 10, इसको ले लेते हैं 10 है, ये 20 है, 30, 40, 50 वोल्ट, और ये है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इधर डिस्टेंस दिया हुआ है, इधर भी डिस्टेंस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और पोटेंशियल डिफरेंस हर जगह सेम है, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है। तो क्या किसी दो को ले लेंगे? किसी दो का ले सकते हैं, इसको 2 ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, या इसको ले सकते हैं, इन दोनों को ले सकते हैं, इस दोनों को ले सकते हैं, जो लेना है ले लीजिए।
एक ट्रायंगल बना लीजिए, लेकिन तो हम थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, पूरा बड़ा का ले लेते हैं, इस तरह से ले लिए ट्रायंगल। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन होगा, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, हाई टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर मूव करता है। और तीसरा, अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या ई निकालना है तो ई बराबर होता है डीवी बाई डी आर होता है, डीवी बाई डी आर होता है। तो हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, पोटेंशियल दिया हुआ है, माइनस भी होता है, मॉड में रहेगा, ई मॉड अगर पूछेगा तो डीवी बाई डी आर होगा। ये 3 पॉइंट में फॉलो करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हाई है इधर लो है, मतलब इस तरह से रहेगा। और ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस भी होगा, हर जगह परपेंडिकुलर टू द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन नीचे से ऊपर की ओर होगा, क्योंकि हाई इधर है, लो इधर की ओर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। डिस्टेंस वही लिया जाता है जो पैरेलल टू द फील्ड लाइंस हो। डिस्टेंस ऑलवेज टेकन पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, डिस्टेंस ऑलवेज टेकन पैरेलल टू द फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस का हमेशा पैरेलल ही आता है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए 4 पॉइंट तो एकदम याद रखना होगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, ई बराबर माइनस डीवी बाई डी आर, अगर मॉड में लेना तो डीवी बाई डी आर। और डिस्टेंस ऑलवेज टेकन पैरेलल टू द फील्ड लाइंस, दिस इज द पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट and this is high potential of 50 volt और this one is low potential 10 volt, जीरो आगे भी होगा, माइनस में भी जा सकता है। तो फील्ड का डायरेक्शन हमेशा इधर से इधर की ओर होगा और ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, मतलब ऐसे तिरछा उछा भी नहीं ले सकते हैं, इसके जस्ट लाइन का हमेशा परपेंडिकुलर लेना होगा। और जब ई निकालना है तो ई लिखिए, और डीवी, दो के बीच का डिफरेंस कितना है, 50 से लेके 40 गया तो माइनस ले लेते 40, 50 से लेके 40, बड़ा सा ट्रायंगल में ले रहा है, ये एंगल 60 है तो ये 60 होगा, 90 है तो 30 होगा। या अगर ये 30 डिग्री एंगल है, थोड़ा सा इजी कर लेते हैं, कैलकुलेटर रूट में आ जाएगा, ये 30 है तो 30 होगा, 90 है तो 60 डिग्री होगा। तो E इज इक्वल टू हो गया -40 इंटू डिस्टेंस, दोनों के बीच का सेपरेशन, इस दोनों लाइन के बीच में सेपरेशन जो फील्ड लाइन का पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये डिस्टेंस नहीं लेना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 10, 20, 30, 40 है, और ये 60 डिग्री है, तो इसका कितना हो जाएगा 40 cos 60 ले लिए। ये डिस्टेंस 40 cos 60 होगा, ये डिस्टेंस 40 sin 60 होता है। एंगल के सामने वाला साइन और बेस वाला cos होता है। 40 cos 60, और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, देखो लिखे क्लियर लिखे हैं सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर बदलने के लिए 100 से नीचे है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E इज इक्वल टू 40 से 40 कट गया -100, और cos 60 1/2 बराबर -20 वोल्ट पर मीटर। मॉड में अगर निकालना होगा तो होगा 20, मॉड अगर निकालना होगा तो 200 वोल्ट पर मीटर, इस तरह से आंसर होगा। तो आपको डायग्राम पहले फील्ड में डायग्राम में दिया था, पोटेंशियल में डायग्राम दिया हुआ, तो इस तरह से बनाएंगे। एक और इसमें डिफरेंस सेम था, डिफरेंस सेम ना हो तब क्या करेंगे, तो एप्लीकेशन को नोट कीजिए, एप्लीकेशन नंबर 7 बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। नो, एप्लीकेशन नंबर 7, एप्लीकेशन नंबर इस तरह का क्वेश्चन है, दिस वन, दिस ऐसा क्वेश्चन है। इसका है 10 वोल्ट, ये सॉरी 60 वोल्ट है, और ये है 30 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है। अब डिफरेंस दोनों में सेम नहीं है, यहाँ का बीच का डिफरेंस है, बीच का डिफरेंस 30 है, यहाँ का बीच का डिफरेंस 10 है। तो तुमको क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, या मीटर में ही रख लेते हैं, डिस्टेंस है ये मीटर में दिया हुआ डिस्टेंस x है, मीटर में दिया हुआ।
इधर भी इस तरह से जाएगा। तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा या बोल देगा एट 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ कहीं पर पड़ेगा 15 सेंटीमीटर। तो ऐसा निकालने के लिए पहले या डिफरेंस सेम नहीं होगा, तो भी का फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो आर गैप सेम नहीं है, गैप सेम है मतलब ये सेम है, और भी सेम नहीं है, इसका मतलब ये सेम है। के क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा भी आर। अब सबका के क्यू निकाल के हम देखते हैं। तो भी कितना है इसका 60, आर का वैल्यू कितना है 10, बराबर कितना हो गया 600 वोल्ट, 600 यूनिट। फिर के क्यूब दूसरे का निकालते हैं भी आर, के कितना है 30 और इसका आर 20 है, 600 यूनिट, 600 यूनिट। फिर के क्यू निकालते हैं, भी 20 है और डिस्टेंस कितना है 30, कितना हो जाएगा 600 यूनिट। मतलब एक अलग फंडामेंटल क्वांटिटी के क्यू हर जगह कांस्टेंट है। एक बार नहीं समझ जाना चाहिए कि अगर डिफरेंस सेम नहीं दिया है, डिफरेंस सेम दिया और पोटेंशियल डिफर कर रहा है, मतलब के क्यू ही कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट नहीं है। तो इसका अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना आसान हो गया क्यू। अगर हम क्यू निकाल लेते हैं तो पहले जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। मानते हैं ई बराबर क्या फॉर्मूला पड़े, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब के क्यू कितना हम निकाले 600, तो 600 बाई आर स्क्वायर आंसर हो गया। जनरल पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। और अगर हम इसको जनरल पॉइंट पर नहीं निकालना चाहते हैं, जनरल पॉइंट पर अगर इसको नहीं निकाल करके दिया 15 मीटर पर निकालिए, तो कितना हो जाएगा 600 बाई 15 गुने 15, 15 चौके 60 40, 8 25 40 3, 8 by 3 volt per meter. This will be the electric field at 15 meter. Okay. Now these are the applications. और भी अगर एप्लीकेशन आपको मिलते हैं या क्वेश्चन अराइज होता है तो आप हमको फोन कीजिएगा, फोन करेंगे, जीमेल मेल पर भेजिएगा या मेल पर ही भेजिए। व्हाट्सएप नंबर तो नहीं हम दे रहे हैं, मेल पर भेजिए, ये मेल है, इस पर भेजिएगा, हम क्वेश्चन डिराइव करके या सॉल्व करके देंगे। अगला है इक्यू पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा पॉइंट, it is a work done to bring a charged body from infinity to a point against electrostatic force स्लोली। टेक्निकल वर्ड है, इसको लिखना जरूरी है। मानते हैं पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O having electric field E, a test charge Q0 is brought from infinity to A which is at a distance of R. We consider very small section dx at a distance of x from A. बहुत बार लिख चुके हैं इसको, फिर से बोल देते एक बार। Consider there be point charge Q at point O having electric field E, a test charge Q0 is brought from infinity से ला रहे हैं, infinity to A which is at a distance of R from O. We consider a very small displacement dx at a distance of x from O. So then dw is equal to f dot dx, f dx cos theta, f dx cos 180, cos 180 is equal to minus f dx, f is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught q into q0 by x square dx, dw इंटीग्रेट करते हैं, w is equal to minus q0 by 4 pi epsilon naught 1 by x square dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इन्फिनिटी से ला रहे हैं कितना पर, r पर ला रहे हैं तो r ले लिए। इसका 1 by x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 by x यानी q0 by 4 pi epsilon naught 1 by x हो गया, इन्फिनिटी टू r q0 q0 दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught लिख सकते हैं। 1 by r माइनस 1 by infinity, 1 by infinity बराबर क्या होगा, 1 by infinity इज इक्वल टू 0 यानी w इज इक्वल टू k q0 by r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। अब इस पे कुछ एप्लीकेशन अगले लेक्चर में हम देंगे। ओके, आप इसको जरूर पढ़िएगा। अच्छे एप्लीकेशन आज बताएं जो IIT में पूछे जाते हैं या किसी भी कंपटीशन में पूछते हैं। अगर पोटेंशियल से ही क्वेश्चन पूछा तो इस 7 एप्लीकेशन से बाहर नहीं पूछेगा।
जैसा मेरा विश्वास है। हो सकता है और कुछ है, अगर आपको मिलता है तो हमें भेजिएगा। थैंक यू।